Okay, students, so welcome back. In our last lecture, we have done NLP introduction as well as some of the famous applications of NLP, natural language processing. In today's lecture, we are going to start with revisiting the AI project cycle with NLP. Let us try to understand how we can develop a project in NLP with the help of an example. So the example is given with the scenario. Let me understand this scenario first of all so that we can correlate AI project cycle with NLP, natural language processing. The world is competitive nowadays, and people face competition in even the tiniest task and are expected to give their best at every point in time. When people are unable to meet these expectations, they get stressed and could even go into depression as well. We get to hear a lot of cases when people are depressed due to reasons like peer pressure, studies, family issues, relationships, etc. And they eventually get into something that is bad for them as well as for others. So, to overcome this, CBT, that is cognitive behavioral therapy, is considered to be one of the best methods to address stress as it is easy to implement on people and also gives good result. This therapy includes understanding the behavior and mindset of a person in their normal life. With the help of CBT, therapists help people overcome their stress and live a happy life. If you would like to understand more about the CBT, cognitive behavioral therapy, then you could go to this link as this link is given here. So you have the book, you could go to this Wikipedia link and check this. I hope you have understood what is CBT. कई बार लोग जो स्ट्रेस में होते हैं अपनी ज़िंदगी में और स्ट्रेस किस बात का होता है लाइक मैं फर्स्ट नहीं आ पाया या मैं फर्स्ट नहीं आ पाई या मेरे को लोग प्यार नहीं करते हैं मतलब फैमिली इश्यूज आ जाते हैं स्टडीज़ में बड़ा स्लो लर्नर है तो जिसकी वजह से ये चीज़ें उसको स्ट्रेस दी जाती हैं तो उसको ये आम बात है ये सब कुछ आता तो जिसकी वजह से एक थेरेपी होती है जिसके लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसमें उनको काउंसल किया जाता है और समझाया जाता है तो दिस इज कॉल्ड सीबीटी ठीक है नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एनएलपी विद प्रोजेक्ट साइकिल तो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर तो प्रॉब्लम ये आती है सीबीटी इज टेक्निक यूज्ड बाय मोस्ट थेरेपिस्ट टू क्योर द पेशेंट आउट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन but it has been observed that people do not wish to seek the help of a psychiatrist willingly. वो साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहते वो अवॉइड करते हैं ऐसे इंट्रैक्शन को क्योंकि कई बार कुछ लोगों के मुंह से सुन लेते हैं तो तेरा लगता है दिमाग खराब है जा साइकेट्रिस्ट को दिखा तो उनको ऐसा लगता है कि शायद साइकेट्रिस्ट के पास पागल लोग जाते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है समटाइम हम लोग साइकेट्रिस्ट को ये बोल देते हैं कि वो हमारे लिए एक काउंसलर है जो हमें हेल्प करता है जस्ट टू अंडरस्टैंड इन द पॉजिटिव मैनर जस्ट टू टेक द थिंग्स इनटू द पॉजिटिव मैनर राइट तो इसीलिए देयर इज अ नीड टू ब्रिज अ गैप बिटवीन द पर्सन हु नीड्स अ हेल्प एंड द साइकेट्रिस्ट तो उसको एक गैप चाहिए बीच में तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं ये हमारा मेन प्रॉब्लम स्कोपिंग है तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्कोपिंग को 4W कैनवस के साथ अंडरस्टैंड करते हैं तो सबको पता है 4W कैनवस क्या है हु कैनवस व्हाट कैनवस वेयर कैनवस एंड व्हाई कैनवस राइट who what where and why so let me understand this with the help of 4W canvas who canvas means who has the problem who are the stakeholders कौन है जिनको प्रॉब्लम है तो वो लोग पीपल हु सफर फ्रॉम द स्ट्रेस एंड आर एट द ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन जिनको डिप्रेशन है वो लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम है एंड हम उनके बारे में क्या जानते हैं हम उनके बारे में ये जानते हैं कि वो साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट नहीं करना चाहते what do we know about them like people who are going through stress are reluctant to consult a psychiatrist तो ये हम लोग उनके बारे में जानते हैं now what canvas what is the nature of the problem so what is the problem people who need help are reluctant to consult a psychiatrist and hence live miserable life
तो उनको एक मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ती है क्योंकि वो कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हमें ये प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला, तो सर्वेज हुए मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन के बारे में, तो बहुत से ऑथेंटिक सोर्सेज से हमें ये पता चला कि ये प्रॉब्लम आती है। नाउ वेयर डज दिस प्रॉब्लम अराइज, वेयर कैनवस, व्हाट इज द कंटेक्स्ट सिचुएशन इन विच द स्टेक होल्डर्स एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम। जब कब आती है ये प्रॉब्लम, है ना। तो वेयर इज दिस प्रॉब्लम अराइज, जब वो कोई स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजर रहे होते हैं या कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में आ जाता है जिसकी वजह से दे आर फीलिंग दिस यू नो स्ट्रेस काइंड ऑफ थिंग। तो वाई डू यू थिंक कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है। What would be the key values of the to the stakeholders, as like people get a platform where they can talk and vent out their feelings anonymously। अब इसका मतलब क्या है। Now first of all understand the meaning of this vent out। Vent out meaning is to just let something out, whether it's a hot air or your feeling means, अगर आप एक बैलून में से हॉट एयर को बाहर निकाल रहे हो तो वो भी क्या है, वेंट आउट, वी से वेंट आउट द हॉट एयर फ्रॉम द बैलून। और अगर कई बार आप अपनी फीलिंग्स जो आप अंदर से एंग्री हो, गुस्से से भरे हुए हो और उसको बाहर निकाल रहे हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेंट आउट अ एंग्री इमोशंस, ओके, और फीलिंग्स। तो मतलब क्यों हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, बिकॉज पीपल गेट अ प्लेटफॉर्म where they can talk and vent out their feeling anonymously. People get a medium that can interact with them and applies primitive CBT on them. CBT is cognitive behavioral therapy on them and can suggest help whenever needed। अब सपोज कीजिए कि उनको एक ऐसी एप्लीकेशन मिल जाए या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जिससे वो बात करना शुरू कर दें, तो उनका जो भी गुस्से वाला, जैसे कि थेरेपिस्ट उनसे क्वेश्चन पूछता है वैसे ही एक सॉफ्टवेयर उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, तो आई थिंक दिस विल बी अ बेस्ट पार्ट, कि जिसमें उनके पास, क्योंकि उनको डर किस चीज़ का है, उनको डर है कि वो थेरेपिस्ट के पास जाना नहीं चाहते, तो अपने घर बैठ के तो थेरेपिस्ट को देख सकते हैं ना, मतलब एक एप्लीकेशन के थ्रू। अब वो कई बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं कि ऑनलाइन थेरेपिस्ट से बात कर लो, लेकिन फिर भी पता तो लग जाएगा ना थेरेपिस्ट को कि इस आदमी को ये प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा सामने आना ही नहीं चाहते। तो ऐसा है कि एक ऐप है तो वो सबके बीच में बैठे, किसी को कौन सा पता चल रहा है कि वो कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस के आंसर देके अपनी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो दिस विल बी अ एआई एप्लीकेशन। हाउ वुड इट इम्प्रूव देयर सिचुएशन। तो अब ये ऐप जो हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं वो कैसे इनकी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो पीपल वुड बी एबल टू वेंट आउट देयर स्ट्रेस, वो अपनी स्ट्रेस को निकाल पाएंगे, एंड दे वुड कंसीडर गोइंग टू साइकेट्रिस्ट व्हेन एवर रिक्वायर। जब उनको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली अब ऐप ऐप से उनको ये क्लियर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग सम डिप्रेशन, तो इट्स बेटर कि अपनी लाइफ गंवाने से अच्छा है एक बार साइकेट्रिस्ट के पास जाया जाए और उसको अपनी प्रॉब्लम बताई जाए। तो दिस कुड ऑल्सो बी हेल्पफुल, ठीक है। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन होएगा जो हेल्प करेगा उन लोगों को जो एक मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं अपने साइकेट्रिस्ट के पास ना जाने की वजह से। अब क्योंकि हमने सारे हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई देख लिया है, अब उसका एक टेम्पलेट है। नाउ चेक आउट द टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या बोलता है, अर पीपल अंडरगोइंग स्ट्रेस हैव अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग एबल टू शेयर देयर फीलिंग्स while they need help in venting out their emotions। जब उनको अपने इमोशंस को बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो an ideal solution would provide them a platform to share their thoughts anonymously and suggest help whenever required। तो ये चार क्या है हमारे, who, what, where and why। दीज आर द 4W प्रॉब्लम कैनवस। अब ये प्रॉब्लम कैनवस हमें कहाँ लेके आया है, दिस लीड्स अस टू द गोल ऑफ आवर प्रोजेक्ट विच इज़ टू क्रिएट अ चैटबॉट which can interact with the people, help them to vent out their feelings and take them through primitive CBT, cognitive behavioral therapy। तो उनकी जो एक थेरेपी होएगी वो एप्लीकेशन के थ्रू ही हो जाएगी, एज लाइक ऐसा उनको ऐसा लगेगा कि एक थेरेपिस्ट ही उनसे बात कर रहा है, उनको काउंसिल कर रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ चैट, है ना। तो दिस विल बी वैसे भी आजकल पीपल प्रेफर टू डू द चैट रादर देन टू टॉक फेस टू फेस, तो chatting is common, so this would be a great application, okay। So for that, now first step we have done, which was the problem scoping, as we were doing the project cycle। So we have done the problem scoping, this is the step।
Right now we are going to do the data acquisition. Second step is to collect the data. अब ऑब्वियसली अगर हमें एक एआई मॉडल बनाना है तो एआई मॉडल इज एंटायरली बेस्ड ऑन द डेटा। तो वो डेटा को फीड करना पड़ेगा मशीन के अंदर। टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल वी नीड टू कलेक्ट द कन्वर्सेशनल डेटा so that the machine can interpret the words that they use and understand their meaning। मतलब मशीन को बताना पड़ेगा कि अगर एक जो इंसान है वो ये बोलता है कि मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस है, तो वो जो हमारी एप्लीकेशन है उसको पता होना चाहिए उसको क्या आंसर करना है। तो ये कैसे पता चलेगा? जब कोई थेरेपिस्ट की कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड किया गया होएगा और उसको उसमें हमारे एप्लीकेशन के डेटा में फीड किया होएगा, तभी उसको पता होएगा कि मान लीजिए 10 केसेस ऐसे आ सकते हैं तो उसमें उसको अलग अलग केसेस में क्या क्या अलग अलग आंसर करना है। तो ये हम लोग डेटा कैसे एक्वायर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सर्वेज, with the help of observing the therapist sessions, है ना, databases available on the internet, or some kind of interviews with the therapist or with some stressed people. Okay, now after that, once the data would be acquired, this third thing means first was problem scoping, second was data acquisition, third is data exploration. Once the textual data has been collected, it's need to be processed and cleaned so that an easier version can be sent to the machine. Thus, the text is normalized through various steps and is lowered to minimum vocabulary since the machine does not require grammatical correct statement but the essence of it। अब इसमें क्या है, जब उनको डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो उस डेटा को प्रोसेस करना है, क्लीन करना है और ईजियर वर्जन भेजना है मशीन को। एंड ये बहुत से स्टेप से होता है जिसमें एप्लीकेशंस भी होती हैं जो डेटा को इस तरह से मिनिमाइज कर देती है, एज लाइक ईजियर वर्जन में आ जाता है डेटा। और उसमें बहुत मिनिमम वोकेबलरी होती है, ग्रामेटिकल करेक्ट स्टेटमेंट्स मशीन को नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक एसेंस चाहिए होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, इस एम आर की ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, उसमें ग्रामर नहीं आती है। ठीक है, तो नाउ वी हैव ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द डेटा। Fourth step is to make a model, means modeling. Once the text has been normalized, it is then fed to an NLP based AI model। तो अब क्योंकि हम लोग NLP को AI प्रोजेक्ट साइकिल के साथ बना रहे हैं, तो फिर NLP बेस्ड AI मॉडल को वो डेटा दे दिया जाएगा, मतलब फीड कर दिया जाएगा उस सिस्टम के अंदर। तो नाउ नोट दैट इन NLP मॉडलिंग रिक्वायर्स डेटा प्री प्रोसेसिंग ओनली आफ्टर विच द डेटा इज फेड टू द मशीन। तो depending upon the type of chatbot we try to make, there are a lot of AI models available which help us build the foundation of our project। तो बहुत से AI मॉडल है जो आपको चेक आप कर सकते हो। अगर एक मॉडल हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर फिट नहीं बैठता तो आप उसको दूसरा मॉडल लगा के देख सकते हो। ये जब आप लोग इसकी प्रोग्रामिंग में जाओगे AI की, देन यू विल गेट टू नो कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। Now is evaluation. The model trained is then evaluated and the accuracy for the same is generated on the basis of the relevance of the answer। मतलब उसको इवेल्युएट, अब मॉडल को ट्रेन कर दिया, अब उसको टेस्ट करने की बारी है। चेक किया जाएगा कि जो आंसर उसका एक्यूरेट होना चाहिए, क्या वो आंसर वो जो एप्लीकेशन है या जो हमने बनाया है जो सॉफ्टवेयर, क्या वो हमें सही आंसर दे रहा है या नहीं। To understand efficiency of the model, the suggested answer by the chatbot are compared to the actual answer। अब कौन करेगा actual answer compared? कोई थेरेपिस्ट करेगा कि अब जो मशीन ने उसको आंसर दिया है, क्या वो एक्चुअल आंसर जो ये आंसर होना चाहिए, क्या उसने सही आंसर दिया है। तो दिस वुड बी चेक बाय द थेरेपिस्ट। अब ये देखिए ज़रा, इन्होंने 3 फिगर्स दिखाई है, डिग्री 1, डिग्री 4, डिग्री 15। अब व्हाट इज दिस? As you can see in the above diagram, the blue line talks about the model output while the green one is the actual output। तो ये जो blue line आप देख रहे हो violet कलर की, violet पर्पल कलर, तो ये जो ब्लू लाइन है जो मॉडल बता रहा है, तो ये बताती है कि मॉडल ने क्या आउटपुट दिया, और ये जो ग्रीन लाइन है वो क्या एक्चुअल आउटपुट क्या होनी चाहिए थी। तो फिगर 1 में हम लोग देखते हैं, द मॉडल्स आउटपुट डज नॉट मैच द ट्रू फंक्शन एट ऑल, hence the model is said to be underfitting and its accuracy is lower। अब ध्यान से देखिए, पहले वाली जो है, अब ये जो मॉडल आउटपुट हमें ऐसा सीधा सीधा लाइन दे रहा है, लेकिन उसका आंसर तो इस तरह से होना चाहिए, दैट इज़ अ कर्व, है ना। तो मतलब कि हमारा जब पहली बार हम लोगों ने चेक किया तो हमारा आंसर जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल नहीं आई। अब दूसरे वाले मॉडल में देखते हैं, मॉडल परफॉर्मेंस मैचेस वेल
with the true function which states that the model has optimum accuracy and the model is called the perfect fit। अब देखिए इसके ग्रीन लाइन के साथ साथ ही चल रही है ब्लू लाइन भी, तो मीन्स हमारा मॉडल बिल्कुल सही चल रहा है। अब थर्ड केस में देखिए, मॉडल परफॉर्मेंस इज ट्राइंग टू कवर ऑल द डेटा सैंपल इवन इफ दे आर आउट ऑफ द अलाइनमेंट टू द ट्रू फंक्शन। अब ये तो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया कि वो हर एक डेटा सैंपल को कवर करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ओवर फिटिंग मॉडल। तो लेकिन इसकी भी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। तो मीन्स अब इन तीनों में से जो हमारा सबसे बेस्ट मॉडल है वो क्या है, सेंटर वाला, फिगर नंबर 2 वाला। ठीक है। तो वंस द मॉडल इज इवेल्युएटेड थॉरली इट इज देन डिप्लॉयड इन द फॉर्म ऑफ एन ऐप विच पीपल कैन यूज इजीली। अब वो क्या हो जाएगा, एक ऐप की फॉर्म में हम लोग यूज़ कर लेंगे, और एक ऐप की फॉर्म में हम लोग डिप्लॉय कर लेंगे, मतलब बना लेंगे, और लोग उसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट उन्होंने क्या है, चैटबॉट्स की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। एज वी हैव सीन अर्लियर, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP is a chatbot. There are a lot of chatbots available and many of them use the same approach as we used in the scenario above. तो सबने ऐसे ही सिनेरियो यूज़ किए हैं। तो आप एक काम कीजिए कि मेरी अगली वीडियो देखने से पहले इन चैटबॉट्स को एक बार सर्वे कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। तो उसमें विच चैटबॉट डिड यू ट्राई, कौन सा किया, एक नाम बताइए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस चैटबॉट, और इन क्वेश्चंस के आप क्या कीजिए, आंसर कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे कंटिन्यू करवाता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।